السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، میرا نام ہے مشیر اور ہمارے ساتھ ہیں مولانا سرفراز احمد صاحب. آج ہم پوڈ کاسٹ شوٹ کرنے والے ہیں اس ٹاپک پر جو ابھی زور پر ہے، جیسا کہ الیکشنز نزدیک آ رہے ہیں، تو اسی کے ریگارڈنگ ہم آج شوٹ کرنے والے ہیں پوڈ کاسٹ. الیکشنز ڈیموکریسی کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ پارٹ ہے، اور جو پالیٹکس ہماری کنٹری میں چل رہا ہے، جیسا کہ کرنٹ سچویشن ہے پولیٹکس کی، اس میں بھی الیکشن ایک بہت بڑا پارٹ پلے کرتا ہے. تو ان الیکشنز میں ہم مسلمانوں کا، عوام کا کیا کردار ہونا چاہیے، یہ ہم حضرت سے پہلا سوال کرتے ہیں اور پوڈ کاسٹ شروع کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مشیر بھائی، آپ نے جو سوال کیا کہ مسلمانوں کا کیا کردار اس سیاست میں ہونا چاہیے، مسلمانوں کی تو حالت بہت زیادہ تشویشناک ہے، چاہے وہ سیاست کا میدان ہو یا وہ معاشی میدان ہو. ہر جگہ ہم پسماندگی کا شکار ہے، پستی ہے، اور ہر طرح سے پسا ہوا آج کے دور میں مسلمان اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے. اور ہندوستان کی سیاست میں اس کی حیثیت ایک یتیم کی طرح ہے. حالانکہ میں مایوسی کا فیور کبھی نہیں کرتا کہ جو دور ہم دیکھ رہے ہیں، ہمارے اسلاف نے اس سے خطرناک دور دیکھے ہیں. تاتاریوں کا فتنہ کوئی چھوٹا موٹا فتنہ نہیں تھا. فرسٹ ورلڈ وار، سیکنڈ ورلڈ وار کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں تھی. فی الوقت جو مڈل ایسٹ میں مسلمانوں کے ساتھ میں ہو رہا ہے وہ کوئی کسی سے ڈھکا چھپا بھی نہیں ہے. لیکن اب ہندوستان کا مسلمان، چونکہ دنیا کے اندر ایک بڑی تعداد ہندوستان کے اندر ہے، لیکن ہماری صفوں میں چاہے وہ مذہبی ہو یا سیاسی ہو، ایسے غدار موجود ہے جنہوں نے قوم کی رہنمائی کے نام پر ہمیں صرف لوٹا ہے اور بیوقوف بنایا ہے. اب جب مصیبت آپ کے سر پر ہے، ہر کوئی اس کو جانتا ہے، تو ایسے حالات میں ہر آدمی کو اپنی عقل و شعور کا استعمال کرنا چاہیے. سیاسی میدان میں بھی اسے چاہیے کہ وہ ایسا کوئی کام نہ کرے جس سے اسے اس ملک کے اندر نقصان پہنچے. اب سیاسی یتیمی تو ہے ہمارے پاس کہ کون ہے ہمارا ایسا سیاسی رہنما جو ہمارے لیے اٹھ کھڑے ہو. جو لوگ ہے تو وہ کرتے کم ہے، چلاتے زیادہ ہے. ہمارے ہاں بکتے ہیں لوگ تو خریدار بھی ہے. ارے جہاں چیز بکیں گی جس بازار میں، تو وہاں خریدار تو ہوں گے نا. تو ہم بکتے ہیں تو لوگ ہمیں خریدتے بھی ہیں. اب رہا سوال یہ کہ اس حکومت کے تحت جب سے ہمارے ملک کی سیاست آئی ہے، حکومت آئی ہے، تو ہمارے پہ ظلم و ستم میں اضافہ ہوا. تو کچھ ہے جو اس کو کھل کر بولتے ہیں، اور کچھ ہے کہ شتر مرغ کی طرح آنکھوں کو زمین ریت میں گاڑ کر یہ سوچتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں دیکھ رہے تو کوئی کچھ نہیں دیکھ رہا. لیکن اس سیاست کے اندر ہمیں بہت بردباری سے اور اپنے ذہن کو ایک جگہ جما کر کام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. موجودہ سیاست میں میں یہ نہیں کہتا کہ ہم اپنے بل پر کبھی کچھ کر پائیں گے، اس کے کوئی چانسز ہمیں نظر نہیں آتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہمارے قوم میں سے ایسے لیڈر اترے جو واقعی لیڈر ہونے کا حق ادا کرے. وہ جا کر ہمارا سودا کہیں نہ کرے، بلکہ وہ واقعی ہمارے لیڈر ہو. ان کے اندر دینی ملی جذبہ ہو اس چیز کا کہ ہمیں اپنی قوم کے لیے کچھ کرنا ہے. تو اس طرز حکومت میں یا اس طرز سیاست میں ہمارے اوپر بہت ساری ذمہ داریاں ہیں کہ ہم ایسا کچھ کر گزرے اس وقت میں سیاسی پوائنٹ آف ویو سے کہ ہم کچھ کام آ جائے ہمارا آگے چل کر. لیکن ایسے کوئی لوگ ہم کو نظر نہیں آتے ہیں. اور جو لوگ ہیں جنہوں نے سالوں سال قوم کی رہبر ہونے کا دعویٰ کیا، لیکن آج وہ چند روپیے پر بکتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو ابھی ہمیں ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اس سیاست کو اچھی طرح سے سمجھے پہلے، اور اپنا ووٹ دینے سے پہلے سمجھے کیا ہمارا ووٹ صحیح جگہ جا رہا ہے یا نہیں جا رہا ہے، یا ہم اپنا ووٹ کو کہیں ضائع تو نہیں کر رہے ہیں. قوم سمجھتی ہے، کوئی آج کھانے کو ہپا اور پانی کو مما نہیں بولتا ہے. سب کو شعور ہے. جب وہ اپنی کوئی چیز خریدنے مارکیٹ میں نکلتا ہے تو وہ اس کی ساری باریکیوں کو چیک کرتا ہے. اس میں کوئی ڈیفیکٹ تو نہیں ہے، اس میں کوئی خامی تو نہیں ہے، میں یہ لوں گا تو اس سے مجھے کچھ اور نقصان تو نہیں ہو جائے گا. ہر چیز کا وہ انالیسس کرتا ہے، سوچتا ہے، سمجھتا ہے جب خریدتا ہے. لیکن آپ ایک حکومت کو تشکیل دینے جا رہے ہو، ایک حکومت بنانے جا رہے ہو، تو اس کے اندر آپ نہیں سوچ رہے اس چیز کو کہ مجھے کس کو ووٹ دینا چاہیے، کس کو نہیں دینا چاہیے. یہ شعور آپ کے اندر نہیں ہے. وہ میری برادری کا ہے تو میں اس کو ووٹ دوں گا، وہ میرا پڑوسی ہے تو میں اس کو ووٹ دوں گا، وہ میرے محلے کا ہے تو میں اس کی سنوں گا، یا وہ فلاں ہے اس نے ریلی نکالی تھی کار والی تو میں اس کو ووٹ دوں گا، فلاں اس نے وہ کام کیا تو یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ اپنی عقل و شعور کا استعمال کرے اور ووٹ دے. سارے مسلمانوں کا اساسی جو مسئلہ ہے، ایک
ہے وہ ہے नामूस रिसालत। अभी हाल ही में जो कुछ हो रहा है उसमें जिन लोगों ने हमला किया वो लोग इख्तिदार में हैं, तो अब आप अपनी बुर्दबारी को छोड़कर अगर ऐसे लोगों को वोट डालते हैं जो आपके वोट को जाया करेंगे और उनको आने में आसानी फराहम करेंगे, तो आप तो उन्हीं की सफ में खड़े हो गए। फिर जाकर आपने उनके लिए रास्ते हमवार किए। एक साहब कहते हैं कि हमें इख्तिदार में आना है, तो इख्तिदार में आने के लिए असबाब आपके पास क्या है? पहले आप बताइए तो सही हमको असबाब क्या। आपके पास क्या वोट का पावर है उतना क्या आप अपने बल पर अपने कैंडिडेट को ला सकते हो? जहां ला सकते हैं वहां तो 40 और खड़े हो जाते हैं एक के मुकाबले में। समझ में आप समझ रहे हैं कहाँ के मैं इशारा कर रहा हूँ जी। यानी जो आदमी श्योर शॉट चुन के आ सकता है उसके मुकाबले में 40 और खड़े कर दिए आपने, ताकि वो सब 40 तुम खिचड़ी बांट लो थोड़ी थोड़ी और हमारा कैंडिडेट जो है फिर वहां पहुंच जाए। ये सियासत है यहाँ की, खरीदे जा रहे हैं लोग। वैसे ही जो मजबूत कैंडिडेट है, जो टफ उसको टारगेट दे रहा है, उसको टफ कंपटीशन दे रहा है, उसको छोड़कर आप कह रहे कि नहीं ये पार्टी कुछ नहीं करती, वो पार्टी कुछ नहीं करती, हम अपना करेंगे, तो आपके पास उत्ते है कि आप उसको चुना के उसको जिता सकते हैं? नहीं है। तो बुर्दबारी होना चाहिए कि जो नामूस रिसालत पे हमला करने वाले लोग हैं उनको इख्तिदार से हटाने के लिए, उनको पावर से हटाने के लिए अब जो मजबूत कैंडिडेट है मेरा वोट उसके साथ में। ये तर्ज अमल होना चाहिए। ये होती है सियासत कि अभी हमारा किरदार ये होना चाहिए कि जो लोग गुस्ताखों की पुष्टपनाही कर रहे हैं, जो लोग मुसलमानों को निस्तो नाबूद करने के लिए दिन रात लगे हुए हैं, जो लोग हमारे मजहबी मामूलात में मुदाखलत कर रहे हैं, उन लोगों को इख्तिदार से हटाने के लिए जो मजबूत कैंडिडेट सामने है उसको वोट दिया जाएगा, चाहे वो किसी भी पार्टी का। ये होना चाहिए हमारा तर्ज अमल इस सियासत के अंदर। लेकिन जो जीत सकता है, जो टफ कंपटीशन दे रहा है, उसको छोड़कर आप बोलेंगे कि हम अपने अपने चिल्लुओं में पानी लेके दौड़ेंगे, तो नहीं होता ऐसे। और ये सियासत का तरीकाकार भी हरगिज नहीं है। तो हजरत ये तो आपने बताया आवाम का किरदार, लेकिन आवाम में ही कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सियासत की बात करते हुए उलमा पर हमले करना शुरू कर दे। तो ऐसी सिचुएशन में जब उलमा पर हमले हो रहे हैं और नामूस रिसालत पर हमले हो रहे हैं, तो इस सिचुएशन में जो हमारे उलमा हैं उनका क्या किरदार है, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती है, या वो किस तरह से हमारी कौम की रहनुमाई कर सकते हैं? इस बारे में कुछ वजाहत फरमाइए। उलमा क्या करेंगे? आप उलमा से क्या आप चाहते हैं कि वो आपका प्रचार करें बाहर निकल? ये जो लोग कह रहे हैं कि उलमा ने क्या किया, मैं जानता हूँ चंद लोगों को, मेरे पास में आई खबरें। उलमा क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। पहली बात तो उलमा सियासत में नहीं है। उसकी वजह यह है कि जो सियासी लीडरान अभी मौजूद है या जो उलमा सियासत में आए पहले, उनकी क्या दुर्गत जो है इस फील्ड में हुई है वो हम अच्छी तरह जानते हैं। एक बात, यहाँ की सियासत बड़ी गंदी है। जो कौम ये बोल रही है आज, या जो लोग ये बोल रहे हैं कि उलमा ने क्या किया, उन्होंने कभी चाहा इस चीज को कि उलमा कौम की नुमाइंदगी करे? ये झूठा ढकोसला है। यानी अपनी नाकामियों का ठिकरा जो है वो उलमा पर थोप दो। उलमा ने कभी सियासत नहीं, सियासत जो कर सकता है सही मानों में वो उलमा ही कर सकते हैं। लेकिन तुमने कभी उलमा को उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा? कभी उनको बहैसियते कायद तुमने उनको देखा? नहीं देखा। लेकिन जब भी तुम्हें अपनी नाकामियों का ठिकरा फोड़ना होता है तो तुम कहते हो कि उलमा क्या कर रहा है। अभी एक ऑटो चलाने वाला आदमी कहता है कि उलमा ने क्या किया। तू ऑटो चला, तेरा काम है ऑटो चलाना, तो उलमा पे तनकीद मत। उलमा ने क्या किया अब तुम पूछ रहे हो? उलमा ने तुम्हारे अब्बा और अम्मा का निकाह पढ़ाया तो तुम पैदा हुए, लेकिन तुम पैदा हुए तुम्हारे कान में भी अजान जो है किसी मौज़िन या इमाम ने आकर दी होंगी, और जब तुम मरोगे तो तुम्हारा जनाजे की नमाज भी जो है कोई आलिम ही पढ़ाएगा। ये करते हैं उलमा। तुम्हारी जिंदगी की शुरुआत से लेकर इख्तिताम तक हर काम तुम्हारे निपटा कर दे रहे। फिर तुम्हारी जीवान दराजी का आलम ये कि उलमा ने क्या किया। 10,000 और 15,000 की पेमेंट देकर तुम उन पर रोब झाड़ते हो मस्जिद के अंदर। तुम कह रहे हो कि उलमा ने क्या किया, कि इनको कुछ मिला होगा किसी से। तो है किसी में दम हमको खरीदने के लिए? लेकिन है कोई खरीद सकता है हमको? उलमा को खरीद सकता है? फला शहर के काजी साहब ने इतने करोड़ ले लिए। अफवाहें उड़ाते हो, झूठ बात करते हो। जो छोटे ग्रुप लेकर खड़े हो गए हो, इंडिविजुअल 20,000 रुपया कलेक्टर ऑफिस में जमा करना पड़ता है इलेक्शन लड़ने के लिए। फिर उसके बाद में प्रचार के लिए लाखों पैसा तुम्हें दे रहा कौन? तुमको इतना पैसा? तुम पहले ये बताओ उलमा ने क्या किया? छोड़ो, तुम जो कर रहे हो तुम बताओ पहले कि ये 20,000 रुपए कलेक्टर ऑफिस में जमा करना, उसके बाद में इतने सारे बूथ को मेंटेन करना और पब्लिसिटी करना, ऑटो को घुमाना, ये सारा पैसा तुम्हारे पास कहां से आया? जबकि तुमको यकीन है कि तुम्हारी जमानत भी जब्त होंगी, यानी वो जो 20,000 जमा किए वो जब्त हो जाएंगे, वो मिलना भी नहीं है तुमको वापस। तुमने जो ऑटो से और पोस्टरों से जो खर्चा किया, जो उसके लिए लड़कों को लगाया काम पर, ये पैसा तुम्हारे पास कहां से है बताओ? ये बिकाऊ किस्म के जो नेता है वही ये कहने लगाते हैं लोगों को कि उलमा ने कुछ नहीं किया ताकि अपनी नाकामी छुपा सके। तुम
बिके हो जाकर, मैं एक जुमला कह रहा हूं बहुत सख्त है, लगेंगी, दूर तक लगेंगी ये जाकर। एक फाहिशा औरत जो होती है जब वो अपने ज़मीर को बेचती है तो सिर्फ अपने जिस्म का सौदा करती है, लेकिन ये 4 टके के लोग ये गैरों की दहलीज पे जाकर अपने ज़मीर को बेचते हैं मगर पूरी कौम का सौदा करके आते। वो तो सिर्फ अपने जिस्म का सौदा करके आई है, ये पूरी कौम का सौदा करके आते हैं वहां। तुम बिकते हो इसलिए तुम्हारे यहाँ फाइली के 50 खड़े हुए नजर आए, क्योंकि वो चाहते हैं कि तुम डिवाइड हो जाओ ताकि हमारे रास्ते हमवार हो जाए, तुम बढ़ जाओ ताकि हमारे रास्ते हमवार हो। और फिर तुम लंबी ज़बान करके ये बोलते हो कि उलमा ने क्या किया। एक साहब को मैं सुन रहा हूं, वो कहते हैं कि उलमा जालिम है। उलमा जालिम है? जुल्म तुमने किया कि छोटी छोटी पार्टियां बनाकर तुमने अपने आप को मुंतशिर कर दिया। तुम जालिम हो कि तुमने कौम का सौदा किया, और जालिम उलमा को कह रहे हो तुम। उनको गोबर और इत्र से मिसाल दी जा रही है उनकी। हक बात बोलना अपनी जगह है, लेकिन अल्फाज का तयन आप कौन सा कर रहे हो, कैसे अल्फाज किसके लिए इस्तेमाल कर रहे हो, थोड़ा ये भी तो सोचो। फिर उनको लाना बरसरे राह कि तुम सियासत करो और पीछे से भाग जाना फिर। और ये हुआ है, माजी करीब में हुआ है कि तुम उलमा को एक तरफ आगे बढ़ाओ और फिर पीछे से भाग जाओ। उलमा सियासत से दूर है, ये उनकी हिकमत और बुर्दबारी, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर हम सियासत में एंट्री करेंगे तो ये कौम हमारा क्या हासिल करने वाली है, उन्हें अच्छे से मालूम, इसलिए बेचारे वो दूर ही रहते। उलमा अपनी जिम्मेदारियों को अदा कर रहे हैं। आप क्या समझोगे, आप एक प्लेट बिरयानी पे बिक जाते हो, तुम्हें बिरयानी का स्वाद चाहिए। आपको क्या मालूम है कि मदरसे में जो ये उलमा है, इन्होंने मदरसे में दाल रोटी दाल चावल खाकर जो तालीम हासिल की है कितनी मुसीबतों से हासिल की है, तुमको क्या मालूम। तुम तो एक प्लेट बिरयानी में बिक जाते हो, नहीं बिकते। तुम्हें तो मस्जिद का इमाम नहीं चल रहा, उसके अंदर ये कमी, उसके अंदर ये कमी, उसके अंदर ये कमी, मस्जिद के इमाम को नहीं, और मस्जिद तोड़ने वाले तुमको चल रहे, उनकी बिरयानियां तुम्हारे को चल रही। इतना जमीर हमने बेच दिया कि बिरयानी पर हम बिक गए। जो खुले दुश्मन है तुम्हारे, वाज़े दुश्मनी जो तुमसे निभाते हैं, उनको तुमने अपने गले से लगाया, बिरयानी खा रहे हो उनकी। इतने बेगैरत हो गए हम कि हमें अच्छे और बुरे का शऊर नहीं बचा। बार बार हर मसला पैदा होता है, नामुसे रिसालत का मैटर हो या वक्फ वोट का मैटर हो, चाहे कोई भी मैटर होता है, जब बस ये लंबी लंबी ज़बानें करके ये एक चंद ओबाश निकल पड़ते और बोलते फिरते हैं कि उलमा ने क्या किया। तुमको उलमा इतने सस्ते मिलते कि अपनी सारी नाकामियों का जो ठिकरा जो है तुम उलमा के सर पर फोड़ दो लाग। अगर उलमा को वाकई अव्वाम ने वो मकाम और मर्तबा दिया होता कि आप हमारे कायद है, आप बता हमको गाइड करो, तो आज ये दुर्गत जो हमारी है वो नहीं होती। लेकिन हम तो बचपन से देख रहे हैं, हर गली के अंदर एक सियासी लीडर है, हर पत्थर हटाओ तो उसमें से एक निकलता मैं भी नेता, हर पत्थर के नीचे से एक निकलेगा मैं भी नेता। और जाकर सौदे करते हैं फिर दूसरों की दहलीजों पर, और तुम्हारी औकात जो है 1000-2000 वोट की नहीं है, और पूरी कौम का सौदा जो है गैरों की दहलीज पे करके आ जा रहे हो। इसलिए उलमा को मत घसीटो। आज ये सब कुछ को गुफ्तगू का मरकजो महवर इसी बात पर, आप उलमा को मत घसीटो। तुमको जो करना है वो करो, जिसको वोट देना है दो, जिसको नहीं देना है मत दो। अगर तुमको अल्लाह ने अक्ल नहीं दी है और तुम 100-200 और 250 रुपए में बिकने वाले हो तो बिक जाओ, तुम्हारे खरीदार खड़े हैं। मगर उलमा को क्यों घसीट रहे तुम? उलमा कुछ नहीं कर रहे, कि वो चाहते ये है कि उलमा सियासत में आए और हमारी पार्टी को सपोर्ट करे। मकसद ये है, एक्चुअल में पेट का दर्द ये है कि हम टनाटन लोग हैं, हमारा आकर सपोर्ट करो। पहले उस काबिल तो अपने आप को बनाओ कि तुम्हारा सपोर्ट किया जाए। तुम वही लोग तो हो जो उलमा को व्हाट्सएप मैसेज करते हो कि चूड़िया पहन लो। तुम वही लोग तो हो ना जो बरसरे राह ये बोलते कि बुज़दिल है उलमा। और अब इलेक्शन आया, तुम्हारा सपोर्ट कोई नहीं कर रहा था, तुमने पूरा ठिकरा उठा के फोड़ दिया उलमा के ऊपर। रहा सवाल ये कि जो उलमाए कराम सियासी एक्टिविटीज में है और वो किसी भी सियासी पार्टी से अगर जाते तो वो उनका इंडिविजुअल इनफरादी फैसला है उनका, वो उसमें कुल उलमाए कराम का फैसला वो नहीं है। अगर कोई जाकर किसी को शाल पहना रहा है, कोई जाकर किसी का सत्कार कर रहा है, तो वो उसका अपना जाती अमल है। आप उस एक की वजह से बरसरे राह आकर रोड पर खड़े रहकर आप उलमा को टारगेट करेंगे, यह हक आपको किसी ने नहीं दिया। फिर अगर उलमा जवाब देंगे तो तुम उनके घरों पे हमले लेके जाओगे, तुमने क्यों बोला? लड़ाते हैं। हाँ, फिर ये कहा जाएगा देखो उलमा तो लड़ा देते आपस में। हाँ, अपना किरदार और अमल ना देखो और फिर उनको घसीट के लाओ बीच में और उनको तमाशा बनाओ। यही हो रहा है। कौम ने अपना कायद खुद चुनना था, लेकिन वो भटक रही है इधर उधर। और उलमा ही है जो अल्लाह से भी डरते हैं, उनके अंदर बुर्दबारी भी है, उनको आप लाओ ना। जो इलेक्शन है और जो हालात है उसमें सिर्फ एक बात हमारे सामने होना चाहिए कि जो जालिमों को हटाने के लिए सबसे मजबूत कैंडिडेट है हम उसको सपोर्ट करेंगे, बाकी हमको कुछ नहीं समझता। तुमने अपने आप को बेचा है, जब तो 20,000 रुपए कलेक्टर ऑफिस में भरने के तुम्हारे पास पैसे है। कोई आदमी जिसमें उसको यकीन हो इस चीज पर कि यहाँ मुझे लॉस है, ये पैसा मेरा डूब जाएगा, जमानत जब्त होना जिसको बोलते, जो मैं प्रचार में खर्च कर रहा हूँ उसका रिजल्ट मुझे नहीं मिलने वाला, वो आदमी अपने जेब से पैसा लगाता है क्या जी? वो हरगिज अपने जेब से, बल्कि उसे
जेब में उसके डाला गया है लाकर, कहीं वो अपने जमीर का सौदा करके आया है और पूरी कौम को बेच के वो कहीं पर आया है। हाँ तुम फिक्र मत करो, मैं तो इतने काट दूंगा उसके वोट, तुम फिक्र मत करो वो उतने काट देगा, इधर से 1 2 3 4 जिनकी कोई औकात नहीं, जिनको कोई पहचानता तक नहीं, वो भी इलेक्शन में खड़े हैं। किस लिए? सिर्फ वोट काटने के लिए। और फिर तुम्हें वोट कटवा कहा जाए तो तुम बोलते हो कि देखो ये तो गाली दे रहे हैं, ये तो हमको ऐसा बोल रहे हैं। हाँ तुम कर रहे हो काम, दिख रहा है। अभी जरूरत इस चीज की है कि हमारे सामने हमारा खुला दुश्मन है, अब उससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं वो करें, और अक्ल सलीम, अल्लाह ने यहाँ अक्ल दी है, आप उसका इस्तेमाल करें। सबको समझता है, लेकिन किसी की अदावत में, किसी की दुश्मनी में, या किसी की शोहरत से जल कर हसद करके अगर आप कौम का सौदा कर रहे हैं तो याद रखो तुम्हें दुनिया में भी खसारा उठाओगे और आखिरत में तो अल्लाह के हर चीज का जवाब देना। रहा सवाल मुसलमानों की हालत, तूफा से डरने वाले ए आसमां नहीं हम, 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान, 100 बार हो चुके हमारे इम्तिहान, माजी में भी हो चुके, आगे भी होंगे। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइम मिनल खौफि वल जुई व नक्सिम मिनल अमवाली वल अनफुसि वस्समा, अल्लाह तो हमें आजमाएगा, ईमान वाले हम आजमाए जाएंगे। ये क्या है जो हम पे मुसल्लत है जालिम, तुम्हारी वजह से है। अगर सियासी लीडर हमारे सही होते तो ये जालिम भी मुसल्लत हम पे नहीं होते। अब है मुसल्लत तो ये आजमाइशों का दौर है, ठीक है आजमाइश तो मुसलमान दे रहे हैं, लेकिन तुमने जो सौदा किया है अपने जमीर का, तुम जरा उस जमीर से पूछो, तो कभी तो झिंझोड़ेगा ना, कभी तो हलाएगा तुमको अंदर से कि बेटा तूने कौम का सौदा करके आ गया, कभी तो हलाएगा। तो फिर उस जिस दिन जमीर हलाएगा तो फिर पूरी कौम से माफी मांग लेना कि हाँ भाई मैंने चंद रुपये के लिए, चंद पैसों के लिए आपका सौदा किया, मांग लेना उस दिन। माशाल्लाह हजरत ने बहुत अच्छे से जवाब दिया है। तो चलते चलते हमने जो पूरी ये आज की गुफ्तगू की है, आज का जो पूरा पॉडकास्ट किया है, उसे समराइज कर, आज का जो पॉडकास्ट किया है उसे समराइज करने के लिए एक आखिरी सवाल हजरत, और उसका आप चाहे तो सिर्फ 1 या 2 जुमलों में जवाब दे दें कि हमारी यानी आवामुन नास की, मुसलमानों की क्या जिम्मेदारियां बनती हैं इलेक्शंस को लेकर, या उलमाओं की जो ताज़ीम है उसको लेकर के, या नामूस रिसालत को लेकर के, इन टॉपिक्स पर हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं। अवाम को सबसे पहले तो अपने अंदर बुर्दबारी पैदा करे, अपनी अक्ल का सही इस्तेमाल करें। जी ठीक है, हर आदमी को समझता है, मैंने पहले भी कहा कि कोई आदमी आज पानी को मम्मा नहीं बोलता, वो बच्चा नहीं है, उसको सब समझता है, अच्छा बुरा सबको समझता है। तो अब अवाम की जिम्मेदारी ये है, हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि इलेक्शन को इलेक्शन की नज़र से समझ में। हमारा मकसद ये होना चाहिए, जिन लोगों ने गुस्ताखी की, जो लोग इस्लाम दुश्मन हैं, जो लोग हमारे वजूद को मिटाने के लिए काम कर रहे हैं, हमको उनका मुकाबला करने के लिए जो मजबूत कैंडिडेट है उसको सपोर्ट करना है। एक चीज उलमा को भी चाहिए कि वो अवाम की सही रहनुमाई करे, जज्बात से काम नहीं होता है, यहाँ हिकमत की जरूरत है, वो भी अवामुन नास की सही जो है रहनुमाई करे। और साथ ही साथ कितनी ही मसरूफियात क्यों ना हो निकले। वोट डालना आपका जमहूरी हक है ना आपका, वो वोट डालने का हक आपको आपके दस्तूर अमल ने दिया है ना, संविधान ने आपको ये राइट दिए हैं, तो आप सारी मसरूफियात को एक तरफ करके बाहर निकले, अपना वोट डाले, इसमें काहिली ना करे, वोट परसेंटेज अपना अच्छा करे। हाँ जो भी जीते जो हारे हमको उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अपने अक्ल का इस्तेमाल करे और अपने वक्त की कुर्बानी यहां पर दे, निकले बाहर, वोट दे। बस वोट देना ये आप जुनून की हद तक लेके जाए कि नहीं हमको देना है भाई, कुछ भी हो जाए टाइम निकालेंगे, लाइन में खड़े रहना पड़ेगा ना, ठीक है लाइन में खड़े रहेंगे। हालांकि हम लाइन में अपनी माँ बहनों को खड़े कराना नहीं चाहते, लेकिन अपनी नस्लों के मुस्तकबिल को संभालने के लिए, संवारने के लिए आज ये कुर्बानी हमें देना पड़े। अगर आगे कुछ अच्छा देखना है तो कुछ करना पड़ेगा, निकले बाहर, वोट करें, वो आपका हक है, आपके राइट से आप उसको इस्तेमाल करें और एक अच्छे माहौल के अंदर एक अच्छी हुकूमत को तश्कील देने में अपना किरदार अदा करे, ताकि ये जो खुराफातें और ये जो नफरत का एक बाजार है इसको खत्म किया जाए, और हर आदमी को शक शुबा की नजर से देखना भी बंद करे कि ये बिका है वो बिका है। जिसे बिकना होता है वो बंद कमरे में भी बिक जाते हैं, बाजारों में भी बिक जाते हैं, लेकिन जिनके ज़मीर आज भी जिंदा है, और ऐसे लोग कल भी जिंदा थे और आज भी है, जिनके ज़मीर जिंदा है और वो कौम की सही रहनुमाई करने के लिए हमा वक्त जो है आमादा रहेंगे। तो नाजरीन ये था हमारा आज का पॉडकास्ट। हजरत ने बहुत ही प्यारे अंदाज में हमें बहुत सारी चीज़ें समझाई हैं। तो आखिर में हम आपसे यही अपील करना चाहेंगे, बराए मेहरबानी अपने घरों से निकले, अपनी जिम्मेदारी निभाए और वोट करें, ज़रूर भी ज़रूर वोट करें, अपने
اپنے ایکسپیرینس کا استعمال کرتے ہوئے، اپنے عقل کا استعمال کرتے ہوئے، جیسا کہ حضرت نے بتایا، ضرور ووٹ کریں. اور آئندہ پوڈ کاسٹ کے لیے اگر آپ کے پاس میں کوئی بھی سوال ہے یا کوئی ٹاپک آپ سجیسٹ کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں بالکل کریں. بس اسی پر ہم اختتام کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.